आरटीओज़ का हमारे इंडिया में बहुत ही इश्यू है ई-कॉमर्स ब्रांड में, एज़ यू नो। हम जब आरटीओ का इश्यू सॉल्व करते हैं ना, सो रोआज़ एज़ अ मिड सीटीआर को देखोगे तो फँसोगे। The volume of sales, the ROAS they expected, everything was fine. But still they were unprofitable. I've seen the brands who are selling like 3 to 4 ROAS still unprofitable, still at break even. प्लेटफॉर्म को कैसे चूज करते हो किस ब्रांड के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा इस At least एक कैंपेन लेवल को जाना चाहिए हर बार के सेल्स। प्रेस जो एड अकाउंट है कंप्लीटली ऑप्टिमाइज मैनर में रन करने के लिए कितना समय देना पड़ेगा? डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डिफरेंस? 8वीं दिन अरे सेल्स नहीं आया, 10वीं दिन अरे कुछ आ ही नहीं रहा, करे या ना करे। सो दैट इज अ रियली फुल लिस्ट। वेलकम ऋतुजा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपना टाइम देने के लिए हमें। ऋतुजा परफॉर्मेंस मार्केटर है, 4 इयर्स एक्सपीरियंस है इनके पास। So hi guys, this is Rutuja Sharke. So it's been 4 years into this performance marketing field. I just started my career as a copywriter. I was like generally into writing ads, writing a content for the landing page and all. But soon I realized कि I have just explored all the digital marketing field कि SEO कैसा है, social media marketing कैसा है, organic content कैसा है, email marketing कैसा है, and all those things also. But from that I also experienced the running ads. I just simply as a part, like one of my job part, I've run the ads, meta ads for one of my client. That time I realized like I'm really curious about this niche. I'm really liking it, the data factor which we need to read it, then take a decision. It was so like playing a game, playing a logical game, something in that. So yeah, after that I choose to do a job into performance marketing. So I've been into an agency as a junior media buyer, starting as a career. Okay, then after that in that agency I got a really good experience that how the strategies are made by the senior media buyer, how the clients like relationships are maintained, how the communication should be, and all those other factors being a performance marketing or the media buyer. Then after that I've been into 3 to 4 agencies. Then at last I just decided to be in a freelancing model, just because I feel like the projects, the kind of projects agency gives to me, it was so basic and not that much challenging. So I just want to put my mind into that challenging project so that I can grow. So that was just a short and journey of me. इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग आखिर है क्या, अगर आप करियर परस्यू करना चाहते हैं तो इसके कितने वेज है, और अगर आप ऑलरेडी परफॉर्मेंस मार्केटर हैं तो आप और उसको अच्छे से इन्हांस कैसे कर सकते हैं, वो ऋतुजा के एक्सपीरियंस हम जानेंगे एंड काफ़ी सारे एरियाज को और कवर करेंगे। सो ऋतुजा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थॉट पे बता सकती हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको पता ही नहीं है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्या, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब क्या कि कंटेंट रहता है या एसईओ रहता है या डेटा किसका रहता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम टर्म्स यूज करते हैं। पहले बात तो इट्स अबाउट एड्स। ओके, द एड्स which we are running on the ad platforms. This is the simple. एक ब्रांड को कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उनको सेल्स चाहिए, उनको लीड्स चाहिए, उनके जस्ट ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, उनको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, और भी अदर गोल्स रहते हैं, पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स यू कैन फुलफिल by running the ads on other social media platforms. After that you gain a data which you read the data and optimize the campaign accordingly further. So ये कुछ terminologies है जो performance marketing में आती है in general. So it's all about ads. You just consider एक basic level understanding चाहिए कि हमें ads run करने पड़ते हैं brands के लिए to fulfill their objectives. That's it. डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डिफरेंस? ये कंफ्यूजन मुझे भी था पहले, क्योंकि मुझे पहले डिजिटल मार्केटर बनना था, सब निश में सब कुछ आना चाहिए। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन से। डिजिटल मार्केटिंग पूरा ओशन है, उसमें आप एसईओ कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग लाइक जस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग वन ऑफ द थिंग है, ईमेल मार्केटिंग वन ऑफ द थिंग है। सो इट्स ऑल परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज वन ऑफ द niche of the digital marketing. Okay. So that is a major difference. Digital marketing is the ocean and performance marketing is a part of that digital marketing. तो अगर किसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग बनना कोर्स करना पड़ेगा या कोई करियर वाइज वो कैसे वो परस्यू कर सकता है? कोर्स मैंने तो नहीं किया था, एज आई वॉज वर्किंग इन टू द डिजिटल मार्केटिंग थिंग ऑलरेडी। सो मुझे वो काम मिलना या वो किसी को काम करवा के देना लाइक मुश्किल नहीं था, मैं किसी का भी कर सकती थी। सो जस्ट इन अ क्यूरियोसिटी वे यूट्यूब
इज़ द ओनली सोर्स। सो आई थिंक कोर्स की ज़रूरत तब पड़ेगी जब यू नीड टू गेट इनटू मोर डिटेल, जब आपको क्वेश्चंस रेडी रहेंगे, ओके, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, देन यू ऑप्ट फॉर अ मेंटरशिप प्रोग्राम एंड कोर्स। बट टिल दैट जितने भी क्वेश्चंस है वो पहले आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस है, बड़े बड़े कोर्सेस है, यू जस्ट गो ऑन फुल ऑन। एंड या जितना प्रैक्टिकली लाओगे उस कोर्स को जो यूट्यूब पे सीख रहे हो, दैट इज़ अ वन बेनिफिशियल पॉइंट। सेकेंड, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो क्वेश्चंस है, कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे पहले जो भी बिगनर्स लेवल के रहे थे, कि बजट कितना लगाना है, बजट कैंपेन के हिसाब से लगाना है कि प्रोडक्ट के हिसाब से लगाना है, या सेटअप कैसे करना है। बिकॉज यूजुअली हम जो देखते हैं ना वो प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं तो वो अलग ही रहता है। सो आपको लगता है कि नहीं मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल रहा एंड समथिंग कोर्स इज देयर वेयर यू कैन लर्न, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट, इट्स योर चॉइस। द मेन थिंग इज आप कोर्स से सीखो या यूट्यूब से सीखो, प्रैक्टिकली जितना आप जल्दी करोगे ना, दैट इज अ बेनिफिशियल, दैट्स वेयर यू स्टार्ट ग्रोइंग। तो मेरी प्रैक्टिकल जर्नी जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, वहाँ पे मुझे इतना भी नहीं आता था परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज ए हार्डकोर परफॉर्मेंस। ये 4 साल की जर्नी एज ए एक्सपर्ट करके नहीं है या एज ए एक्सपीरियंस करके नहीं है, इट्स लाइक स्क्रैच फ्रॉम ए टू जेड वाली जर्नी है। सो आई हैव नो नॉलेज कि डैशबोर्ड कैसे ओपन करना है या कहाँ से सेटअप करना है। यहाँ से मेरी फर्स्ट जॉब में मुझे पता ही नहीं था एज ए मीडिया बायर कि ये सब क्या करना है। सो या आई गॉट लकी कि सीनियर सर गिव मी चांस टू लर्न एंड डू द थिंग्स। सो आई जस्ट प्रिपेयर टू लर्न ऑन यूट्यूब, देन आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिकल। तो वहाँ पे मैंने क्विकली लर्न करके प्रैक्टिकलिटी किया था, तो मुझे नॉलेज हुआ, एंड उसकी एग्जीक्यूशन की नॉलेज मुझे अगले जॉब में आई क्योंकि उन्होंने मुझे हायर किया एज एन जूनियर मीडिया बायर, बिकॉज आई जस्ट नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ executing, okay? And once I got into my first job as an executor, like just campaign brief मिलते थे एजेंसी से, वो लॉन्च करने थे सीनियर मीडिया। तो सेकेंड इम्पोर्टेंट लाइक बेनिफिट ये था, मैं देखने लगी ना कि कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कि यही क्यों प्रोसेस SOP फॉलो करते हैं, जो भी चेंजेस करते ये क्यों कर रहे हैं, ये मैंने जाना ना क्योंकि कोई मेरे ऊपर कर रहा था वो। सो जस्ट सीइंग हिम वर्किंग और हर वर्किंग, सो इन दैट मैनर आई ग्रो। सो ये जो पूरी जर्नी है ना, ये मेरी प्रैक्टिकल वर्किंग से हुई है, ना कि कोर्स एंड यूट्यूब से। सो जस्ट वन सजेशन, कहाँ से भी करो, कोर्स करना तो कोर्स करो, यूट्यूब करना तो यूट्यूब करो, पर जितनी जल्दी प्रैक्टिकल में घुसोगे दैट्स वेरी बेनिफिशियल। अभी तो आ ही गए इंस्टीट्यूशंस लाइक डिजिटल मार्केटिंग के भी इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस आई थिंक प्रोग्राम्स रहते हैं, बट दोज आर द बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग। अब यूट्यूब पे भी करोगे तो आपको 1-on-1 स्टेप्स मिल जाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। बट द रीजन बिहाइंड इट, सी हमें ये काम करना है, पर मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस, ये क्यों किया जा रहा है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ इट, ओके? पहले लाइक मुझे भी ब्रीफ्स मिलते थे, पर मैं लॉन्च करती थी, मुझे पता ही नहीं कि ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं। देन आई जस्ट ट्राइंग टू डेवलप माई सेल्फ, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो अब शुरुआती में जब प्रैक्टिकली जानोगे ना, सो दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू ग्रो। मैं वही बोल रही हूँ फिर से, कोर्सेज सभी जगह अवेलेबल है। आप MBA प्रोग्राम में जाओ, आप जस्ट ग्रेजुएशन करो या जस्ट कोर्स लो, मेंटरशिप, दोज आर एवरीवेयर अवेलेबल। ऐसा कुछ नहीं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिकलिटी की कमी है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एकदम न्यू भी है, उसे अपना फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करना है, तो आपके एंड से क्या सजेशंस होंगे कि आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है तो इसी को सिखाना चाहोगे कि एक कैंपेन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ टिक ऑफ करो एंड देन लॉन्च द कैंपेन? कि जब भी कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का, ठीक है? एड्स कितने लगा रहे हो, हाउ मच एड्स यू आर रनिंग, ओके? ताकि उसके लिए आप एड सेट लगाने वाले हो या CBO लेवल पे है। सो ये डिसीजन आपको करने पड़ेंगे। पहले तो ऑब्जेक्टिव कौन सा है, सेल्स है, लीड्स है, ट्रैफिक जनरेशन है, एंगेजमेंट है, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, कितने एड्स एलोकेट कर रही हो, ओके? मतलब टेस्टिंग कैंपेन चला रहे हो या यूई कौन सा तो ऐड चला रहे हो, यू हैव टू क्लियर अबाउट कितने एड्स मुझे चलाने और कौन से एड्स चलाने। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रेडी विद द एड्स। देखो, मीडिया बायर करके डैशबोर्ड पे खेलना है या डैशबोर्ड पे ही ऑपरेट करना ऐसा नहीं है। स्टार्ट्स विद ए स्ट्रैटेजी कि मुझे एड्स बनाने कैसे, दैट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। उसके लिए पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव से कैंपेन रन करना है, उसके लिए मुझे ऐसे एड्स चाहिए विद दिस सीखिए। सो देयर यू नीड टू क्लैरिफाई। थर्ड, बजट क्या है। बजट से भी पहले टाइप ऑफ बजट क्या है, CBO है, ABO है। CBO मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ आप कैंपेन लेवल पे बजट लगाते हो वो सारे एड सेट पे अक्रॉसली स्पेंड कर देता है। और एड सेट लेवल बजट, जहाँ पे आप पर एड सेट को लगाते हो
एंड इट विल स्पेंड ऑन दैट पर्टिकुलर एड सेट. नाउ आई हैव नो आइडिया कि आप कितने बिगनर हो या कुछ जानते होंगे, तो कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल आपको पता रहेगा, बट यू कैन चेक ऑन यूट्यूब. ओके, सो यू हैव टू क्लैरी विद द टाइप ऑफ बजट, देन कितने एड्स है, एड सेट के हिसाब से आप बजट भी लगा सकते हो. 800 रुपये लगाना है, 400 रुपये लगाना है, दैट हाउ मच बजट यू हैव टू डू इट. ओके, एंड या आफ्टर बस यू जस्ट ड्राफ्ट अ प्रॉपर, जो आपने ऐड बनाया वो अपलोड कीजिए. आई सजेस्ट कि 3 कॉपीज, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, ऐसे 3 वेरिएशंस. जितना वेरिएशंस दोगे फेसबुक को उतना अच्छा रहता है. वेबसाइट पे चला रहे हो तो इवेंट ऑप्टिमाइज है क्या देखो, व्हाट्सएप पे चला रहे हो तो मैसेज जो ऑटोमेटिकली जाता है वो देखो, डीएम पे भी सेम यू कैन चेक दैट. लीड फॉर्म चला रहे हो तो इंस्टाग्राम फॉर्म पे क्वेश्चन अच्छे पेज के कि वो देखो. सो दैट इज अ एंड टू एड पार्ट. ओके, सो यू हैव टू जस्ट चेक दिस पॉइंट. अगर आप कैंपेन हो, ये बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल का हो गया कि मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ कि ये चेक करो, वो चेक करो, ये चेक करो, बट यू हैव टू, जो भी कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, क्लाइंट का बजट कितना है, क्लाइंट को कौन सा ऐड करना है और क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऐड से, ये 3 मेजर पॉइंट्स अंडरस्टैंड करो. अगर आप कोई कैंपेन लॉन्च करना है एक ब्रांड के लिए, प्लेटफॉर्म को कैसे चूज करते हो कि मुझे इस ब्रांड के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा? इस बीइंग अ परफॉर्मेंस मार्केट, अभी तो गूगल एड्स एंड मेटा एड्स आ जाते हैं दोनों. ठीक है, ई कॉमर्स एड्स में आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट एड्स, सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं. सो दोज आर द थिंग्स. एंड हाँ, स्नैपचैट एड्स भी रहते हैं, लिंक्डइन एड्स भी रहते हैं. दोज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एड प्लेटफॉर्म्स. सो अभी जब क्लाइंट आता है तो मोस्टली गूगल एंड मेटा का ही करते हैं हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बात. ठीक है, ऐसा कंसिडर करके मैं आपको आंसर देती हूँ कि प्लेटफॉर्म, एक तो क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है. क्लाइंट कुछ स्पेसिफिकेशन से आ रहा है कि मुझे मेटा पे ही रन करना है, मुझे गूगल पे ही करना है, वो स्पेसिफिकेशन जाननी पड़ेगी. और क्यों रन करना है, व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव, ये भी जानना जरूरी है. द ब्रांड इज अबाउट गिफ्टिंग, ये क्लाइंट बोल रहा है मेटा पे करते हैं. कीवर्ड्स वाइज अगर सर्चिंग होता है, आपका कीवर्ड इंटेंट कुछ ब्रांड है, कुछ प्रोडक्ट्स है, तो गूगल सही रहेगा. सो दैट इज अ चॉइस कि कुछ स्पेसिफिकेशन जो क्लाइंट बता रहा है, यू एग्री विद इट और यू डिसएग्री एंड गिव द अदर ऑप्शन एज योर डिसीजन ऑफ इट. ओके, सो उसके हिसाब से किया जाता है. पर जनरल आंसर ये है, जो प्रोडक्ट कीवर्ड इंटेंट बेसिस पे सर्च किया जाता है उसको आप गूगल के लिए प्रेफर करो. और जो डिस्कवरी विच इज अ क्रेविंग, दिख के बिक जाएगा, ठीक है, समथिंग इन दैट, और ऐसा कुछ ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं रहता. ओके, मोस्टली, एंड यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर द न्यू ऑडियंस, नए ऑडियंस तक जाना है तो मेटा प्रेफर कीजिए. और एग्जिस्टिंग ऑडियंस जिनको पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर यू, उसके लिए आप गूगल के लिए जाइए. बट स्टिल एक जनरल वे हुआ देखने के लिए. बट जिसका गूगल में डेटा ही नहीं है, कुछ कैंपेन्स रन ही नहीं किया, देन उसको थोड़ा टाइम लेता है स्पीड अप होने में, वो डेटा भर के फिर अंडरस्टैंड होके. पर मेटा कंपेयर टू दैट गूगल, मेटा इज अ रियली फास्टिंग, क्विकली हो जाता है समथिंग. ओके, पर गूगल के लिए थोड़ा एक डेटाबेस लगता है, समथिंग स्टार्टिंग आउट द फाइंड. सो आप सर्च कैंपेन चला दो, अदर कैंपेन चला दो एक बार. So it's about 3 sections. First, what's the client requirement? Second, what's your decision on it? Third, product को existing जो मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं, उनको ही पुश करना है तो गूगल, और it has a good search volume. Google courses has a good search volume. Video editing courses, other courses, searches बहुत रहते हैं ना. So yeah, already audience search volume है, then Google is the best option. और else आपकी requirement है newer audience, then Meta is the best option. और दोनों भी कर सकते हो. It's a choice of. लिंक्डइन एड वहाँ से लोग जाते हैं उस सारे प्लेटफॉर्म्स. सो रिलेवेंसी लिंक्डइन पे ज़्यादा आपको, जितने भी आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स से, जितने भी आपके कोर्सेज है, जितने भी आपके SOPs टाइप रहते हैं किसी के कि मैंने ये बना, इफ़ यू वांट टू लॉग इन इनटू इट कैन इट हैज़ अ चांसेस समथिंग इन दैट. रोआस और CPA के अलावा आप कौन से नंबर फोकस करते हो? स्ट्रैटेजी है एड्स के बारे में, जो कैंपेन्स के बारे में, वो स्टेजेस अलग रहते हैं. कोई ब्रांड स्केलिंग लेवल पे आ चुका है, कोई ब्रांड स्टार्टिंग लेवल पे, कोई ब्रांड मिड ऑफ द ब्रेक इवन पे खेल रहा है. सो you have to prioritize the matrices, keep changing the priorities of the matrices as per the situation of the dashboard or the situation of the unit economics, या आपका जो भी डेटा है, आपका जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से. ओके, सो रोआस एंड CPA के अलावा एक ही रहता है ना, रोआस मिल गया, CPA मिल गया, अब रिटेंशन करो, रिटेंशंस, कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स पे फोकस करो, या लाइफ टाइम वैल्यू रहता है LTV. सो दैट इज़ अ मोर अबाउट कि आपके पास एक बार कस्टमर्स जुड़ गया है तो साल में वो कितनी बार आपका कस्टमर बन रहा है. 4 बार, मतलब साल में मेरा प्रोडक्ट वो 4 बार खरीदता है, या साल में मेरा प्रोडक्ट वो 2 बार खरीदता है. ठीक है, इट्स लाइफ टाइम वैल्यू. लाइफ टाइम वैल्यू का एक कंसेप्ट ये है कि बिजनेस का ये रहता है कि मेरा कस्टमर मुझसे जुड़ गया तो अगले 5-6 साल तक रहेगा, उसके बाद आई हैव नो आइडिया, अजम्पशन रहता है. ठीक है, सो अगले 5-6 साल अगर वो मेरे साथ रहने वाला है तो हर साल वो मुझसे कितने टाइम्स बाय करेगा मेरा प्रोडक्ट.
4 बार 3 बार, ठीक है। तो उसको एडिशनल किया जाता है सेकेंड ईयर्स। फर्स्ट ईयर अभी देखो मेरे पास है कुछ 100 कस्टमर्स, मुझे पता है कि मेरी हर एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू 3 साल है या 4 साल है, ठीक है। और पैटर्न ये है कि वो कस्टमर हर साल 2 या 3 बार तो मेरा प्रोडक्ट एवरेजली लेता है। कस्टमर जो 3 साल लाइफ टाइम वैल्यू पे रहने वाला है वो आपको कितना रेवेन्यू ला के दे रहा है। सो इट्स अ बिगर पिक्चर कि आप एक रोआस सीपीए आपका जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ये आउट ऑफ जाके देखते हो उस पर ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ डैशबोर्ड के छोटे छोटे नंबर्स मैटर नहीं करेंगे, यू एक्चुअली हैव टू थिंक कि कितना बन रहा है, कितने उसमें से परसेंटेज रिपीट कस्टमर्स है, रिपीट कस्टमर्स में से भी वो लाइफ टाइम वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो समथिंग इन दैट। हम अगर उस पर फोकस करें तो बिजनेस बनता है, ना कि रेवेन्यू। जस्ट एड रेवेन्यू नहीं बनेगा, एड से जस्ट बिजनेस एक्चुअली बनेगा, बिजनेस लेवल पे आप थॉट करते हो, ठीक है। एंड या रिपीट रीमार्केटिंग कितना आप ला रहे हो, जितने कस्टमर जुड़ते जाते हो कितना आप ला रहे हो। उसके अलावा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी खुद शौक थी, मतलब ये कंसेप्ट जब मुझे फेल कर दिया, मुझे लगता कि रोआस अच्छा है तो ब्रांड भी अच्छा रहेगा। इट्स अ मीडिएटर मीडिया बाय थिंकिंग, नॉट अ मीडिएटर, जैसे बिगिनर कि 3 रोआस चल रहा है भाई, अच्छा चल रहा होगा। बट आई हैव सीन द ब्रांड्स हु आर सेलिंग लाइक 3 to 4 रोआस स्टिल अनप्रॉफिटेबल, स्टिल एट ब्रेक इवन। सो रोआस इज अ मिथ आई थिंक, कि ऐसा नहीं रहता कि आप ज़्यादा रोआस पे खेल रहे हो तो अच्छा ही प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं। वो यूनिट इकोनॉमिक्स क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता बैक एंड में, ठीक है। मतलब उनका सब एक्सपेंसेस दे के उनको कुछ बच ही नहीं रहा, तो 3 और 4 रोआस का भी कुछ यूज़ नहीं है। इंस्टेड ऑफ योर गेनिंग अ स्मॉल रोआस बट इट्स अ लिटिल प्रॉफिटेबिलिटी, थोड़ा थोड़ा बच रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे जा सकता। सो रोआस इज अ मेन आई थिंक। हाँ, कॉस्ट पर एक्विजिशन यू हैव टू ऑप्टिमाइज, इट इज़ अ मेन थिंग। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जितनी बढ़ा सकते हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन इतना वहाँ पे जितना फोकस दे सकते हो ना, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। पर रोआस हर ही बार पूरी जर्नी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता जितना कॉस्ट पर एक्विजिशन, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रिपीट कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो देयर द मैट्रेसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, लाइक क्लिक करते हो क्रिएटिव लेवल पे मैट्रेसेस अलग रहते हैं, फनल लेवल पे मैट्रेसेस अलग रहते हैं, एंड रेवेन्यू लेवल पे मैट्रेसेस अलग रहते हैं। जैसे कि क्रिएटिव लेवल के मैट्रेसेस CTR CPM ये कॉम्बिनेशंस के साथ हम डिसाइड करते हैं कि क्रिएटिव अच्छा है कि बुरा है, इन दैट मैनर। और उसका और भी एंगेजमेंट है, हुक रेट, एवरेज वीडियो वॉच टाइम ऑफ द वीडियो, समथिंग इन दैट एंगेजमेंट। तो ये क्रिएटिव लेवल के सारे मैट्रेसेस हो गए। सेकंड यू हैव फनल लेवल मैट्रेसेस। फनल मतलब कि अगर इंसान आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो व्हाट्स द कन्वर्जन, लैंडिंग पेज टू ऐड टू कार्ट टू इनिशियल चेकआउट टू परचेस। ये फनल एक ई-कॉमर्स का रहता है। अब दूसरा भी फनल ले लो ना, लीड जनरेशन का भी ले सकते हो, लैंडिंग पेज टू फॉर्म, आउट ऑफ फनल कितना रिस्पॉन्स किया वैसे। तो इसका कन्वर्जन रेट कितना है, इसके मैट्रेसेस अलग रहते हैं कि लैंडिंग पेज टू ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन रेट कितना है, ऐड टू कार्ट टू इनिशियल चेकआउट का कन्वर्जन रेट कितना है, इनिशियल चेकआउट टू परचेस का कन्वर्जन रेट कितना है। सो ये कन्वर्जन रेट्स बताते हैं कि हाउ योर फनल इज कन्वर्टिंग और नॉट। कन्वर्टिंग रेट वीक रहेगा तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि ऐड टू कार्ट और इनिशियल चेकआउट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ऐड टू कार्ट्स पे कुछ ऑफर्स कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं, या हम सही से लाइक क्लिकेबल नहीं है, टेक्निकल फैक्टर्स है। सो यू गो ऑन ऑल चेकिंग, बट ये आपके रेशियोज बताते कि वीकनेसेस है या सही चल रहे, इट टेल्स यू प्रॉपरली, ओके। एंड देन सेकंड पार्ट कम इन द रेवेन्यू मैनर, कि कितना स्पेंड किया, कितना बचा, GST लेकर कितना रोआस 2x 3x कितना बचा, उसके बाद आपका नेट ग्रॉस शॉपिफाई पे जब बैकएंड पे आप नंबर्स देखते हो वो कितने कलेक्ट हुए हैं, वो सारे रेवेन्यू लेवल कलेक्शंस पैसे में। जब आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो तो आपके एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि क्रिएटिव ज़्यादा चलता है या कराउजल चलता है या वीडियो चलता है? हर एक ब्रांड की टेस्टिंग से पता चलता है कि उसके लिए क्या परफॉर्म होगा। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में देयर इज अ नो फिक्स्ड फॉर्मूला कि किसी भी एक्सपर्ट ने बोला कि स्टैटिक ही चल रहा है तो आपके लिए स्टैटिक ही चलेगा, नहीं, वो उसके ब्रांड्स के लिए चल रहा है। आप खुद टेस्ट करो कि आपके ब्रांड्स के लिए क्या चल रहा है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू हैव टू जस्ट गो लॉन्च, टेस्ट, गेन डेटा, रीड इट एंड डू योर ओन थिंग कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि उनके बजट्स अलग है, उनके प्लान्स अलग है, उनके ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स अलग है। सो यू कांट किसी का भी रीड करके खुद को फॉलो करना। हाँ, यू कैन टेक अ इंसाइट कि ये सिचुएशन मेरे पे आई तो, या मेरे पे आई है तो हाउ कैन यू कैन टेक अ इंसाइट एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट एग्जैक्टली खुद को ऐसे हार्ड है मतलब लर्न मत करो कि यही रहता है, ये चेंज भी हो सकता है आपको, मतलब आपके कैंपस उल्टे भी परफॉर्म हो सकते हैं। हाँ, देयर इज सम पॉइंट कि डिसीजंस लेने नहीं आ रहे डेटा रीड करके भी, मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अरे हमारा क्रिएटिव सही नहीं चल रहा है इसलिए सब कुछ हो रहा है, कि क्या है मतलब प्रोडक्ट की प्राइस में ही प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, ये बहुत सारे डिसीजंस रहते हैं।
मतलब किसको मैं दोष दूँ ना, क्रिएटिव को दूँ, प्रोडक्ट के प्राइस को दूँ, मार्केट को दूँ, किसको दोष दूँ? सो ये कुछ कंफ्यूजन रहते हैं एट सर्टेन लेवल, देयर यू प्रिफर टू रिसर्च, टू टेक अ मेंटरशिप एट अ सर्टेन पॉइंट जब आप स्टक होते हो। तो अगर कोई कैंपेन कर रहा है उस पे अगर सीटीए नहीं आ रहा है तो क्या उसका मतलब है कि क्रिएटिव उसका खराब है? अब वो डिपेंड है ना कि सीटीआर कितना है, 0.4 है, पर कन्वर्जन रेट कितना है, 3%, दैट्स गुड। परचेस आ रहा है ना, पैसे आ रहा है ना, तो सीटीआर का लेके क्या करूँ मैं? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन डेटा रेटिंग। सिर्फ सीटीआर को देखोगे तो फंसोगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव परचेसेस है, तो डेटा रेट कॉम्बिनेशन में करो। सीटीआर कितना है? 1% है, 2%, ठीक है। फनल का कन्वर्जन रेट कितना है? ऐड टू कार्ट टू इनिशियल चेकआउट टू परचेस या लैंडिंग पेज टू ऐड टू कार्ट, ये सही चल रहा है। परचेस आ रहा है, अच्छे से रोयास आ रहा है, ठीक है। तो सीटीआर गिरा भी होगा ना, डजंट मैटर, लेफ्ट इट। आपका परचेस भी कम है, आपका कन्वर्जन रेट का भी प्रॉब्लम है, समथिंग इन दैट, देन सीटीआर पे थोड़ा आप डाल सकते हो कि मतलब कन्वर्जन भी नहीं आ रहे, तो ये सीटीआर का कुछ होगा। सो यू हैव टू रीड इन अ कॉम्बिनेशन मैनर, देन टेक अ डिसीजन। एक क्लाइंट जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आता है तो कौन से गलत टू हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है? ये तो कि मुझे सेल्स लाना है, मुझे इसलिए एड्स चलाना है। एड्स रन करना और ऑब्जेक्टिव का एक्सपेक्टेशंस रखना, सेल्स लीड्स, टोटली एग्रीड। बट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन कि अभी हम चालू कर रहे हैं, तो अभी हमें क्या एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी चाहिए। ओके, सो किसी का रहता है कि कैंपेन्स रन कर रहे हैं, 7वें दिन अरे सेल्स नहीं आया, कैसे चलेगा? 8वें दिन अरे सेल्स नहीं आया, 10वें दिन अरे कुछ आ ही नहीं रहा, करे या ना करे। सो दैट इज अ रियली फुलिश थिंग। पहले आपको काम खुद का रुका के उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता क्या है ये समझाओ। उनको खुद बोलो कि आप खुद थोड़ा स्टडी कीजिए, मैं भी आपको बता दूं कि होता क्या है, समथिंग इन दैट, ठीक है। तो आपको अच्छे से उनको कंसेप्ट पहले बतानी पड़ेगी कि इतना टाइम लगता है, इसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं बताए। मतलब जब क्लाइंट विदाउट नोइंग एनीथिंग जब एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करता है ना, वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे ब्रांड ओनर्स बहुत शार्प भी रहते हैं, उनको बहुत सही से पता रहता है कि ये चीज़ है क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो दे कम विद अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सो इट्स इज अ हाफ नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका एक्सपेक्टेशंस गलत हो जाता है। सो बीइंग अ मीडिया बायर, आपका काम रुक गया तो भी चलेगा, बट यू हैव योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, हाउ इट गोना बी गो और फ्लो, हाउ मच टाइम इट विल टेक। आप जितना उनसे अच्छे से समझाओगे तभी उनको ऐसे वो उनके माइंडसेट प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा ये होता है, मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, थोड़े टेस्टिंग में इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, इतना पेशेंस लेवल है 3 महीने का, ये चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी, एंड कंटिन्यूशन वर्किंग कि एक्सपेक्टेशन से तुरंत रहता है ना कि चलाने के बाद तुरंत सेल्स आएगा, चलाने के बाद तुरंत प्रॉफिटेबल आएगा, तो बहुत कुछ रहता है। ऐसा नहीं रहता परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कि आप आए हो और आप पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो, आप 3 महीने से प्रॉफिटेबल हो। बहुत सारे ब्रांड ओनर्स देखे जो चला रहे, 1 साल से चला रहे और ब्रेक इवन पे चला रहे, बट नो, उनका कुछ तो माइंडसेट है। हमें भी लगता है कि ये चला रहे, ब्रेक इवन पे चला रहे, मतलब क्या, बट दे आल्सो हैव देयर ओन माइंडसेट कि क्यों चलाना है। एक पॉइंट पे मुझे पता है कि ये पिकअप लेगा, एक पॉइंट पे मुझे पता है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी आएगी या मेरा सेकंड प्रोडक्ट आएगा जब मैं इस डेटा का मुझे यूटिलाइज होगा। सो देयर आर आल्सो रियली शार्प ब्रांड ओनर्स हु थिंक इन दैट मैनर, जस्ट गिव इट टाइम, लेट इट रन, लेट इट गेन अ डेटा। ओके, तो वो मशीन भी पावरफुल हो जाता है, मार्केट में आपका हर बार एड्स दिख रहा है वो भी छप जाता है, समथिंग इन दैट माइंडसेट थॉट्स। सो गलत एक्सपेक्टेशंस वाइज तो वही है। अभी आपने पूछा कि क्या एक्सपेक्टेशंस गलत रहती है। सो क्विकली जो आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं ना, एट अ सर्टेन सिचुएशन एप्लीकेबल क्योंकि किसी का ना ब्रांड ओनर्स जो ऑलरेडी 3 रोयास आ चुकी है तो उनका बराबर ही है ना, मुझे उससे आगे चाहिए, या नॉट अ रोयास, द रेवेन्यू समथिंग पॉइंट जो खुद अचीव कर रहे हैं वो क्यों एक्सपेक्ट करेंगे, वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो this is not for them, but who doesn't have a full knowledge and building expectations, that बहुत अलग लेवल के expectations आ जाते हैं। 1 महीने में करना है क्रैक, 1 महीने में इतनी सेल्स लानी, तो वो घुमा फिरा के लैक ऑफ नॉलेज की बात आती है उनको। टाइमलाइन बता सकते हो कि एक प्रेस जो एड अकाउंट है उसको मुझे कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज मैनर में रन करने के लिए कितना समय देना पड़ेगा? दैट स्टिल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। में क्यों बताती हूँ, यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी मैं एक क्लाइंट को बता रही हूँ, मैं देखो आई हैव नो आइडिया कि बाकी लोग क्या कोड करते हैं। मुझे बहुत बार बोले कि आप बताया करो कि आएगा करके फिर चालू करो। मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ ना कि समथिंग ग्राउंड लेवल पे उनको बताया जाए कि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें भी ऑनेस्टली जितने भी एक्सपर्ट लेवल है उनके प्रोडक्शंस हो सकते हैं कि ये मार्केट में ऐसा चल जाएगा। प्रोडक्शंस वो फेल भी हो सकता है पूरा जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा, ठीक है। आपको जितनी भी नॉलेज रहेगी वो हो सकता है, बट आपका प्रोडक्ट ही फेल हो गया
आपका समथिंग क्रिएटिव फेल हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बोला क्लाइंट को यार इतना आ ही जाएगा 15 दिन में, 7 दिन में, फिर आया ही नहीं, देन व्हाट यू कैन डू इट ना, समथिंग इन दैट मैनर। सो देखो कितना टाइम लगता है, हार्डली 7 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़, इसमें तो वार्म अप ही हो जाता है। मतलब 1 महीना वार्म अप ही पकड़ लो, थोड़ा बहुत डेटा ही आ जाता है। सेकंड वन, उस डेटा के बेसिस पे आप कुछ अलाइन करते हो, अच्छा चल रहा है उसको स्केलिंग के लिए अलाइन करते हो, जो बुरा चल रहा है उसको कट डाउन करते हो, नए क्रिएटिव रिफ्रेशमेंट करते हो। तो हार्डली आप 3 महीने, 3 months is a good time for a fresh ad account to be optimized, to get on whole data around it of your product creative. 3 minutes is a efficient time. Again, this situation can fail when आप चलाते ही चलाते बहुत सेल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं 10 दिन में काम हो गया। मैंने ऐसे ब्रांड सच में देखे हैं। एक ब्रांड इतने अच्छे लेवल पे, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छी वेबसाइट है, स्टिल जस्ट फॉरगिविंग फॉर सेल्स, नो आइडिया, प्राइस में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक ब्रांड जो खाली प्रिंटेड टी शर्ट बेच रहा है, जिसने एआई मॉडल्स यूज़ किए, वेबसाइट भी बहुत ऐसे सिंपलिस्टिक वे में, उसके सेल्स भर भर के आ रहे हैं। अभी इसमें बीइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटर, मीडिया बाय इज नॉट माई मैजिक, बट इट्स माई जॉब टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है। सो मैं बहुत बहुत ब्रांड ओनर्स को बताती हूँ, देखो मैं जो सिचुएशन बोल रही हूँ वो फेल भी हो सकती है, वो विन भी हो सकती है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो नो आइडिया। मुझे डेटा आने के बाद ही मैं काम कर पाती हूँ उस डेटा के बेसिस पे। मैं कुछ ऐसे मैजिशियन या भगवान ऐसे पता नहीं चल जाता कि ये होगा, ठीक है, वो फेल हो सकता है। सो जस्ट स्टार्ट होने के बाद, डेटा मिलने के बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक साइंस क्या बता रहा है ना आगे की, वो बता सकती हूँ। वार्म अप हो जाएगा, डेटा हो, कुछ लर्निंग से परफॉर्मेंस क्या है, स्केलिंग क्या करना है, नॉन परफॉर्मेंस क्या है, पैटर्न्स क्या है, ठीक है, पिक्सल भी बहुत अच्छे से सही हो जाता है। सो एक रहते एजेंसी फ्रीलांसर्स 3 मंथ्स की तो बात करते ही करते इन डाउन। जैसे कि आपने बताया कि कोई एक प्रोडक्ट है तो उसके वेबसाइट भी बहुत बेसिक है, एआई से रिलेटेड है, मतलब एआई से बनाया गया चीज़ है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और एक काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो क्या सिर्फ डेटा का हम पता लगा सकते हैं ना कि इसका क्यों चल रहा है और इसका क्यों नहीं चल रहा है? वो मेनली क्या होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा मैटर करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। सेल हो जाता है। आपने प्रेजेंटेशन अच्छी तक की है, एक्सेप्टिंग इन अ गुड वे, गिविंग अ फीडबैक्स एंड बाइंग अगेन एंड अगेन, देन प्रोडक्ट मार्केट फिट है, प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है। हमें भी पता चलता है कि प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि कंज्यूमर रिस्पॉन्स अच्छा है, समथिंग इन दैट मैनर। बट वो ऑर्डर नहीं कर रहा, वो रिटर्न बैक कर रहा है। और ऐसा भी नहीं रहता कि बहुत रिटर्न बैक्स आ रहे मतलब वो प्रोडक्ट गंदा है, ऐसा भी नहीं रहता। इट्स सिचुएशनल थिंग कि कई लोग ना ऐसे ही बाय कर लेते हैं कि करना है, और ऑन पॉइंट पे सीओडी इज रिटर्न। तो आरटीओस का हमारे इंडिया में बहुत ही इश्यू है ई कॉमर्स ब्रांड में, एज यू नो। प्रोडक्ट मार्केट फिट है, वो आपको रिपीट कस्टमर से थोड़ा अंदाज लग जाता है। आपको रिटर्न्स थोड़े मतलब डिपेंडेबल है, वो भी आप बैक एंड पे चेक करो, ये कस्टमर तो बहुत सही है, फिर भी इसने रिटर्न क्यों किया। और आपको सुनाए मतलब यू आर लिस्टिंग की अरे मुझे प्रोडक्ट में ये पसंद नहीं आया, मुझे प्रोडक्ट में। सो इट्स अ वन टू वन कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर जिसने रिटर्न किया, उसके बाद पता चलेगा कि प्रोडक्ट सच में कुछ गड़बड़ है कि सही है, समथिंग है। सो दैट वो थोड़ा डिटेल में जाके आपको कंज्यूमर क्यों रिटर्न कर रहा है, अच्छा कंज्यूमर है क्यों रिटर्न कर रहा है, या रिपीट कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, ये थोड़ा सारा स्टडी करके समझ में आएगा कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं, बाहर से कुछ ऑडियंस गलत है, समथिंग। प्रोडक्ट मार्केट फिट कर है, ऐसा भी देखा जाता है कि उसके सेल्स इतने हिट किए ना, मतलब बहुत ज़्यादा, एक वीकली 50 प्लस है, महीने के अच्छे सेल्स है, तो हम कंसिडर करते थे प्रोडक्ट हिट हो रहा है। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं, 30%, 20% उस प्रोडक्ट पे, तो कुछ तो गफला है। तो क्या गफला? तो आप कस्टमर से ऑन पॉइंट एक थोड़ा रिव्यू पॉइंट किया तो समझ में आता है प्रोडक्ट की प्रॉब्लम की वजह से रिटर्न्स बैक आ रहे हैं कि हम टारगेट ही अलग कर रहे हैं। आरटीओ रिटर्न की बात करें, मैंने ई कॉमर्स किया हुआ है, मैंने फ्लिपकार्ट पे बेचा हुआ है, मैंने मीशो पे बेचा हुआ है। तो उस पे होता है क्या कि मुझे अगर 5 टी-शर्ट का ऑर्डर आ रहा है, तो उसपे से 1 तो एक्सेप्ट हो जाता है एंड 4 रिटर्न आ जाता है। एंड द थिंग होता है कि कस्टमर रिटर्न करता है वो चीज़, या तो वो तो डिलीवर नहीं हो रहा है, मतलब एड्स पे क्लिक करके लोग ऑर्डर तो कर दे रहे हैं। क्या वो प्रोडक्ट खराब है? वो ऑब्जर्वेशन से आएगा ना। आप कंज्यूमर हो, मतलब कंज्यूमर आपके पैकेट पे रहता है, डिटेल सारे पैकेट पे रहता है, तो वहाँ पे देखना पड़ता है कि ये कंज्यूमर तो अच्छा है, इसने रिटर्न क्यों किया। तो जब हम कॉल भी करते हैं ना कि क्यों प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो, तो उनके जवाब से ही समझ में आता है। जिन्होंने रिसीव किया है तो ओपन किया है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, डिफेक्ट रहेगा, कुछ एक्सपेक्टेड वाला नहीं रहेगा, तो वो बता देते हैं। जिनको लेना देना ही नहीं है, मैं बाहर हूँ, समथिंग ऐसे रीजंस रहते हैं, यानी मैंने गलती से ऑर्डर किया तो ऑडियंस गलत है, मतलब लोकेशंस रहता है ना कि कुछ इस लोकेशंस में जा रहे तो बहुत रिटर्न्स आ रहे हैं,
या ऐसी जगह से ही पता चल जाता है। डोंट वांट टू मेंशन समथिंग इन स्पेसिफिक मैनर कि क्या जगह रहती है इन समथिंग, बट ऐसे पता चल जाता है वो ऑडियंस कहाँ से आ रही है, कौन से रीजन से आ रही है, और उस रीजन्स में सब रिटर्न बैक आ रही है। एक स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल, समथिंग इन दैट वैसे पता चल जाता है। सो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व योर कस्टमर डेटा एंड डिसाइड कि क्या रीज़न है रिपीट का। आरटीओ का हम जब आरटीओ का इशू सॉल्व करते हैं ना, केसेस सॉल्व करने पड़ते हैं कि आरटीओ किस वजह से आ रहा है। इट्स अबाउट बैड टारगेटिंग। बैड टारगेटिंग करोगे तो आरटीओ मतलब क्या बैड टारगेटिंग, मतलब कौन से लोकेशन से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उस लोकेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, उस पिन कोड को एक्सक्लूड कर देते हैं इन दैट मैनर। वैसे मेट्रो लेवल पर टारगेटिंग करना चालू कर देते हैं, समथिंग इन दैट मैनर। क्योंकि ऐसे बहुत लोग रहते हैं कि वो कर ही देते बाय, उनको पता ही नहीं रहता उन्होंने बाय किया है। तो माइट बी दोज ऑडियंस आर अनअवेयर अबाउट ऑनलाइन बाइंग और द सीरियसनेस ऑफ दैट बाइंग समथिंग प्रोडक्ट। तो वैसे लोग इट्स अवर कॉस्टिंग ना कि एड कॉस्ट हो रहा है, तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। सेकेंड आरटीओ डील करने का है कि उस कस्टमर्स को ना, जितने भी भर भर के रिटर्न बैक कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, यू हैव टू जस्ट एक्सक्लूड इट। ऐसे कुछ सिमिलर ऑडियंस है तो एक्सक्लूड करो। का पैटर्न जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसका पैटर्न में उसके बहुत सारे कस्टमर्स बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, समथिंग डिफेक्टेड है, ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड रीजंस की वजह से आपको आरटीओ आ रहा है, देन आप कितना भी एक्सप्लोर करो कुछ काम नहीं आने वाला। आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, फिक्स दैट। इट्स नॉट एंड रिटर्न थिंग, इट्स अ प्रोडक्ट, सो फिक्स द प्रोडक्ट, देन आरटीओ विल बी हैंडल्ड। सो जो आरटीओ डेटा लेते हो रिटर्न्स का पैटर्न समझो, वो क्या रिपीटेड पैटर्न से उसको समझ के यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। डैमेजेस जा रहे प्रोडक्ट तो आप क्या ही करोगे ना, रीजन्स एक्सक्लूड करके। डैमेज जा रहा है, डिलीवरी में प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं डिलीवरी वाले, प्रोडक्ट सही से भेज रहे हो पर डिलीवरी में डैमेज हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो मेरे क्लाइंट का ऐसा भी होता है, मैं डिलीवर कर रहा हूँ पर वो डिलीवर में डैमेज हो जाता है। सो हियर यू डोंट नीड टू कंसीडर कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, नो नीड टू कंसीडर कि रीजन में प्रॉब्लम, नो नीड टू कंसीडर ऑडियंस में प्रॉब्लम है, डिलीवरी में, पैकेजिंग डिलीवरी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन सिंपल रहते हैं, ऑप्टिमाइज होने से मतलब जितना वो सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ऑप्टिमाइज हो भी जाता है कैंपस। तो एक ऐसा कोई टैक्टिक या ऐसा कोई फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हो जो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, आप जब उसको यूज़ करते हो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं? मैंने जो मिस किया था मैं बताती हूँ कि मैंने क्या मिस किया था जब मैं डेवलप हुई ना। मैंने मिस किया था कि कंटिन्यूस बजट जो प्रैक्टिस रहती है ना, आप कौन से कैंपेन चला रहे हो तो कंटिन्यूस बजट ऑप्टिमाइजेशन किया करो। मुझे पहले डर था कि अरे मैं ज़्यादा ना बजट पे हाथ लगाऊंगी, चेंजेस करूंगी तो वो लर्निंग फेस में चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जो चल रहा है उसको आप 20% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो, 1% बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो। डू दैट प्रैक्टिस। जो चल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा बजट देना हर 3 दिन में, हर 4 दिन में ज़रूरी है। जो नहीं चल रहा उस पर डिक्रीज करना भी ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिस आप कितने परसेंटेज, 5% तो कर ही लो या 20% बजट, वॉट एवर इट इज, ओके, इट्स योर चॉइस कि आपके हाथ में बजट कितना है, ओके। तो बट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बहुत ही क्लियरली देखा है कि इसका असर होता है। जो नहीं चल रहा उस पर थोड़ा डिक्रीज करो, जो चल रहा है उस पर थोड़ा इंक्रीज करो। ये एक्टिविटी हर 3 दिन 4 दिन आपके विंडो पीरियड पे क्या करो। जो बिगिनर्स है वो थोड़ा मिस कर देते कि ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट लेवल से ही पता चलती है। आप किसी के साथ काम कर रहे हो ना, वो जो करते हैं ना एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस, तो उनके साथ काम करते वक्त ही पता चलता है। तो मैंने कुछ ये चीज़ें सीनियर से सीखी थी, इस लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या समथिंग ऑन। बहुत बिगिनर्स एंड आई डोंट नो, बिगिनर्स मतलब मिस भी करते हैं कि बजट देना। हाँ, दिस वन इज़ अ रियली अ गुड पॉइंट। तो मैंने ये गलती की थी कि मैं पहले एज अ बिगिनर मैं बहुत डरती थी बजट लगाने के लिए। इतना बजट कैसे लगाए, टेस्टिंग का कैंपेन है 300 400 800, ठीक है, इतना बजट क्यों लगाना पड़ता है। सो मैं बहुत कम बजट पे खेलती थी। मैंने यहाँ पे 800 डाल दिया, यहाँ पे 500 डाल दिया, यहाँ पे 500 डाल दिया, हुआ कितना टोटल 1800 तो बजट लग ही गया। पर मैं बजट को ना छोटे छोटे पीसेस में कट करके छोटे छोटे हैड्स पे लगाती थी। दैट इज एक्चुअली अ स्टैग्नेंटेड सिचुएशन। बड़े बजट को इतने छोटे छोटे लेवल पे कट करके सभी कैंपेन्स और एडसेट में स्प्रेड करते हो ना, आपका 3 या 4 दिन में अकाउंट स्टैग्नेंट हो जाता है। इतने बजट पे वो रन नहीं करता, उसको थोड़ा 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 बढ़ाना तो पड़ता है। मैं बढ़ाती भी नहीं थी, वो मेरी गलती थी। अब वो भी मैंने तभी सीखा था। एटलीस्ट एक कैंपेन लेवल को 1500 प्लस तो बजट जाना चाहिए एक कैंपेन लेवल को। अगर आप 2-3 एडसेट जा रहे हो समथिंग 1500 2000 को बजट एक कैंपेन डिजर्व करता है फुल्ली टेस्टिंग के लिए, फुल्ली फ्लरिशिंग लाइक टेस्ट पूरे 7 डेज और 10 दिन का कैंपेन रन करने के लिए उतना तो बजट एक ही बार में दे दो, ठीक है। एंड एडसेट लेवल के ट्राई टू गिव 800 रुपये बजट, समथिंग इन दैट, कि अच्छे से रन हो जाए। तो बजट देना इज वाई इम्पोर्टेंट ना, कि वो अच्छे से रन हो पाएगा फॉर द लॉन्गर
डेज, और जब वो अच्छे से लॉन्गर डेज के लिए रन होगा ना, तब वो डेटा भी क्विकली एंड कंटिन्यूअस मैनर में देना लग जाए. सो डोंट प्ले विद स्मॉल स्मॉल बजट्स, इट विल स्टैग्नेट द सिचुएशन. और अच्छा परफॉर्म हो रहा है तो इंक्रीज कर दो. मतलब वो ब्रेवनेस है ना, मतलब मैंने खुद सुना था. व्हेन आई एम नॉट गिविंग द बजट ना, वो सामने वाले को भी अंडर कॉन्फिडेंट लग जाता है, क्या कर रहा है ये, बजट क्यों नहीं दे रहा है, इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उसके एड्स पे, कॉन्फिडेंस नहीं है कि रिजल्ट्स पे ऐसे बोल देते हैं. ठीक है, यू हैव टू जो एड्स बनाओ उस पर पहले कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से बनाओ एंड कॉन्फिडेंट के साथ उसके बजट दो. जो होता है वो होता है. मतलब देखो क्या ही हो जाएगा ना, 2-3 दिन में पता ही चल जाएगा. एंड द फर्स्ट बेनिफिट पॉइंट ना, जब आप बजट देते हो ना, रियली क्विक डेटा मिल जाता है. 1000 रुपये बजट दे दो, 3 दिन में 3000 खत्म हुआ. एनालाइज तो कर सकते हो ना कि 3000 बजट पे इतना डेटा आया 3 दिन में, तो उसका वो आगे का भी जर्नी पता चल जाता है. पर वही आप 300 रुपये खेल रहे हो डेली का 10 दिन के लिए, बहुत टाइम ले लिया. जो डेटा मुझे 3 दिन में मिल सकता है, वो डेटा मैं 10 दिन में ले रही हूँ, कितना टाइम कंज्यूम हो गया. सो दैट इज ऑल्सो वन बेनिफिट पॉइंट कि आप जब बजट देते हो तो जल्दी टेस्टिंग आउट हो जाता है, जल्दी डेटा मिलता है और जल्दी डिसीजंस ले पाते. 4-5 हज़ार यू आर गिविंग एट एड सेट लेवल, कैंपेन लेवल 6,000, उस लेवल पे बजट देखिए आप एक्चुअल सेल्स ला रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्केलिंग. एड्स रन करना, रिजल्ट्स देना, स्टेबिलिटी पे लाना इज डिफरेंट गेम. स्केलिंग पे लाते हो ना, आपको बजट का काम रहता है. यू हैव टू शो शार्प कि कितना बजट देना है, किस एड्स को देना है, हर कितने दिन के लिए देना है. यू हैव टू शो शार्प, क्योंकि वो बड़े बजट से रहते हैं. जब भी स्केलिंग कर रही हो, छोटे बजट पे नहीं स्केल कर पाओ. मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जब देखा था, मैंने सीनियर ने ये एक्टिविटी की थी ना, आई हैव सीन द रिजल्ट्स. जो मैं छोटे छोटे बजट पे खेल रही थी, वो पंप में लर्निंग फेज से आउट नहीं हो रहा था, स्टैग्नेंट हो रहा था. उसने एक ही बार में इतना अच्छा बजट दे दिया, अच्छे क्रिएटिव्स को, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स वाज इनसेन. तब मुझे पता चला कि नहीं यार, जो अच्छा रहता है उसको बजट दिया करो. यू हैव टू टेक द, एज अ मीडिया बायर बहुत रिस्की लगता है, फेल हो गया तो इतना बजट जाएगा, बट दैट इज लाइक एडवांस लेवल ऑफ लाइक बहुत एक्सपर्ट लेवल, लाइक एक्सपीरियंस्ड लेवल परफॉर्मेंस मार्केटर जो रहता है ना, वो डिसीजन ये ले पाता है. सो यू हैव टू. तो व्हाट वाज द बेस्ट एंड द वर्स्ट रिजल्ट जो आपके पूरे एक्सपीरियंस में रहा और फील? बेस्ट मेरे 2 ब्रांड्स थे जब एजेंसी में काम करती थी. आई हैव सीन कि वो ब्रांड 0.7 से लेके 3 रोएस तक गए था. जो मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, कि कम बजट वाली सिचुएशन, स्केलिंग लेवल पे ज़्यादा बजट देने की सिचुएशन, सेल्स हिस्ट्री वाले एड्स रहते हैं उसको बजट देने की, ये सारी प्रैक्टिस से मिलके वो बहुत ही सही. मतलब 0.7 to 3 रोएस इन अ 1 डे एंड गुड वॉल्यूम ऑफ सेल्स. गुड वॉल्यूम ऑफ सेल्स मतलब भर भर के सेल्स, 100+ ऑर्डर्स, समथिंग इन दैट. तो वो मेरा बेस्ट ब्रांड था. मतलब बेस्ट, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ मेरे सीनियर्स के साथ वो ब्रांड था. इट्स अबाउट समथिंग राइस ब्रांड. ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू मेंशन ब्रांड. एंड सेकेंड वॉज देयर इज मन स्किन केयर ब्रांड. वो घर में खींचते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए, फोटोज. पैकेजिंग इज नॉट दैट ग्रेट कंपेयर टू द कमर्शियल ब्रांड, but still they are having a 3 or 4 rows. What's the change? What's the difference was the basic वाला जो स्किन केयर ब्रांड था, उनका ना इंस्टाग्राम पे कंटेंट एंगेजमेंट बहुत अच्छा था एज अ पर्सनल ब्रांड. द फाउंडर वाज शूटिंग द वीडियो यूजिंग द हर ओन प्रोडक्ट्स, टॉकिंग अबाउट हर प्रोडक्ट्स. तो उनका एक एंगेजमेंट बहुत सही बैठा था. उनको ना ऑर्गेनिक ऑर्डर्स पहले से ही कुछ आ रहे थे, ओके, एक अच्छे लेवल पे. और जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग आया गेम में, तो उसने बहुत कंबाइनली बैकशॉट दिया अच्छे रिजल्ट्स के साथ. तो हमें भी ये बाद में पता चला कि अरे ये जब लाइव जाती है ना, ये जब एक्टिव रहते हैं ना, भर भर के ऑर्डर्स आते हैं हमारे एड्स पे. सो इट्स नॉट अबाउट कि ओनली द एड्स प्लेइंग, इट्स अ कंबाइनली गेम, ऑर्गेनिक और एड्स विच वाज गिविंग हर 3 or 4+ रोएस. सो वो तभी हुआ. कमर्शियल ब्रांड जिन्होंने इतना भी, मतलब है बहुत सही है, फॉलोअर्स भी कंपेयर टू बेसिक ब्रांड से अच्छे है, बट उनका वही रहता है ना, एक पर्सनल ब्रांड के लिए कनेक्शन हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है. पर कमर्शियल ब्रांड एज अ प्रोडक्ट शो करता है, सो उनका रोएस वाइज इतना अच्छा नहीं था. सो दैट वाज अ गुड केस स्टडी ऑफ माई लाइफ कि हाँ, जब आप दोनों के साथ जाते हो, जब आप ट्रस्ट गेन करते हो, तो ये कुछ सीन मिल रहा है. एंड वर्स्ट पार्ट इज लाइक again 2 brands. Worst part, there was a one nail art brand, nails वाले जो ब्रांड रहते हैं ना, बंडल्स, प्राइसिंग सब सही है, डिस्काउंट्स भी बहुत सही है, वेबसाइट इज गुड, सेल्स भी बहुत सही आ गए, बहुत सही आ गए. मतलब द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, द रोआस दे एक्सपेक्टेड, एवरीथिंग वाज फाइन, बट स्टिल दे वर अनप्रॉफिटेबल. यही है वो ब्रांड जिन्होंने, मैंने बोला ना कि रोआस सब कुछ नहीं रहता, वही है कि सब कुछ सही लगता है नंबर्स पे, फ्रैक्चर उनके हाथ में कुछ बच नहीं रहा था. दे वर इनटू द लॉस जस्ट बिकॉज दे वर प्लेइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रोडक्ट. और वो सोच रहे थे कि हमें सेकेंड बेस प्रोडक्ट लाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल दे ना. अगर मैं नेल्स बाय करने जा रही हूँ
तो मैं सेकंड भी कुछ प्रोडक्ट वो लाते कॉस्मेटिक का या अदर एक्सेसरीज का, तो मैं वो भी बाय कर लेती। बंडल ऑफ दैट नेल्स था ना, वो एवरेज ही था ना, 600 700 800 के 1000 के रेंज पे ही था। ठीक है, वो भी अब डिस्काउंट में बेच रहे हो, नंबर्स तो थी अच्छे पर हाथ में एक्चुअल में कुछ बच नहीं रहा था। सो दैट वाज अ गुड वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं बोल सकती, वर्स्ट एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो उसमें क्या रहता है ना, मुझे पता चल गया कि यू कांट प्ले ऑन वन प्रोडक्ट विद दैट रेंज। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में खेलना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर कि एक बैकअप प्रोडक्ट रहना चाहिए जो आपका प्रॉफिट निकाले, जो आपको सपोर्ट करे अदर प्रोडक्ट के लिए। सो जब आप मुझे ऐसा लगा कि वो ब्रांड बहुत वन प्रोडक्ट पे खेल रहा था ना, सो इसलिए वो स्टैगनेंट हो गया था। जब वो अदर प्रोडक्ट ला था, कुछ और ऑप्शंस रहा था, तो वो सारे मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट से सेल्स आती थी ना, तो वो कवर अप कर लेता है। एक ब्रांड फेल हो एक प्रोडक्ट फेल हो रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट रिकवर कर रहा है, समथिंग इन दैट। सो जैसे एआई हर जगह पे आ रहा है, तो परफॉर्मेंस मार्केटर में एआई को कैसे यूज़ कर रहे हैं लोग, या क्या एआई रिप्लेस कर देगा परफॉर्मेंस मार्केटर को? क्योंकि इसमें मैक्सिमम मैंने जहाँ तक जाना है कि एनालाइज करना डेटा का यही मेन और कोर काम है, तो वो एआई भी तो कर सकता है ना? एआई सब कुछ कर सकता है फिलहाल अभी तो। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट्स अ हेल्पिंग हैंड फॉर द मीडिया बायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेसमेंट तो मुझे लगता ही नहीं है, या किसी भी फील्ड में रिप्लेसमेंट कर सकता है। एज ह्यूमन कनेक्शन इज प्रेजेंस, इट्स जस्ट अ असिस्टेंट फॉर अस, वो बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी कैंपेन्स, टारगेटिंग, एड कॉपीज, इनफैक्ट डेटा रीडिंग, उस डेटा रीडिंग से इंसाइट देना, ऑब्जर्वेशंस देना, डिसीजंस देना जो हम करते थे, ठीक है, डिसीजंस क्या ले, ठीक है, समथिंग इन दैट, वो सारा अभी एआई कर सकता है। सीन द एजेंसी ओनर्स कि वो कितना ऑटोमेटेड चीज़ें कर रही है, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग भी, क्लाइंट को रिपोर्टिंग भेज रहे इंसाइट के साथ भेजना चाहिए, जो बहुत स्टफ रहता था पहले बनाने के लिए, वो ऑटोमेट हो गया है। आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी ऑटोमेट हो गया है, वो जो थर्ड पार्टी रहता है, या इनफैक्ट द मेटा या जो डैशबोर्ड है इनबिल्ड है ऑटोमेटेड करने का। सो सारी चीज़ ऑटोमेटेड है। ये सारी चीज़ ऑटोमेटेड होने से हमें क्या अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं ना, यू जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिव्स। मतलब मीडिया बाइंग का जो था ना, इतने सारे सेगमेंट्स, डेटा स्टडी करो, ऑपरेशंस, हाँ वो तो करने पड़ते हैं बेसिक लेवल पे, पर बहुत बिगिनर्स एंड कुछ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आ रहे थे, ये इसी में ही घूम जाते हैं। अरे ये रिपोर्टिंग कैसे बनाते, ये ऑप्शंस कैसे, ये सेटिंग्स कहाँ पे, उसी में ही घूम जाते हैं। ये कैंपेन्स बजट ही कितना लगाओ, ऐसे मतलब अंडरस्टैंडेबल बिगिनर लेवल पे ये सारे बेसिक डाउट्स रहेंगे। आप इसमें ज़्यादा घूमते हो ना, वो सारा ऑटोमेट हो गया। सो यू कैन ओनली फोकस ऑन द क्रिएटिव्स, कि मुझे अभी क्रिएटिव्स भी एआई बना के दे रहा है। अगेन यू हैव द जस्ट डिसीजन पावर। एआई 10 ऑप्शंस दे रहा है, मुझे कौन सा चूज करना है, दैट इज योर पार्ट। सो मीडिया बायर बीइंग अ स्ट्रैटेजिस्ट लेवल का रोल बहुत ही टाइम मिल रहा है स्ट्रैटेजी के लिए, बिकॉज मैंने बहुत सारा देखा है ना, बहुत सारे मीडिया बायर्स कैंपेन्स लॉन्च करने में, रिपोर्टिंग में, क्लाइंट्स को समझाने में और सारे ऑप्टिमाइज करने में उतना मतलब बहुत टाइम जाता है ना। देन अगेन आपकी एनर्जी बचती है, फिर क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में वो अच्छी से भी बननी चाहिए। तो हमारे मीडिया बायर के पास बहुत सारे काम थे पहले, कि रिपोर्टिंग से लेके क्लाइंट कम्युनिकेशन से लेके ऑप्टिमाइज से लेके बहुत सारे काम थे। तो अभी जब एआई, जब आप अपने वर्किंग प्रोसेस में ऑटोमेट कर देते हो, जो आपके 10 में से 9 काम कर रहा है, और एक मेजर काम है जो डिसीजन मेकिंग है, एक मेजर काम है जो आपको देखना है इस प्रोसेस को, ठीक है, या एक मेजर काम है जो क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज करना है, लाइक क्रिएटिव्स कैसे बनने चाहिए, उसकी कॉपीज क्या होनी चाहिए। फिलहाल क्रिएटिव्स डिजाइन एआई भी करके दे सकता है, कॉपीज एआई भी करके दे सकता है, बट यही देना है, दैट्स योर चॉइस। इट्स अ हेल्पिंग असिस्टेंस, इट्स योर टीम मेंबर और एम्प्लॉय। लाइक मुझे एक प्रोडक्ट के एड्स चलाने हैं, क्या मैं उस सारे टूल्स को सीखूँ जो आप बोल रहे हो, या एक परफॉर्मेंस मार्केटर को रखूँ? क्योंकि वो सारा काम तो वो कर दे रहा है, डिसीजन मेकिंग तो मैं ही दे सकता हूँ। ये मैं एक मेजर डिफरेंस बता दूँ। जो परफॉर्मेंस मार्केटर है ना, उसने 10 ब्रांड्स के साथ काम किया, वो डेटा स्टडी में इंडल्ज है, वो क्रिएटिव पैटर्न्स में इंडल्ज है, वो डेटा को कॉम्बिनेशन में कैसे रीड करना है वो इंडल्ज है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो इवेंट बैक एंड पिक्सल में इंडल्ज है। सो ही नोज ऑल ऑफ दैट। सो जब उसको ये सारी चीज़ें पता है, तब वो देख के सारी चीज़ें पता हो कि जब डिसीजन लेता है, और आपको सिर्फ ऊपर का क्रिएटिव, तो वो जो सही इंसाइट्स रहते हैं, सही डिसीजन रहते हैं ना, उसमें फ़र्क रहता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, बीइंग एजेंसी ओनर, एआई करके दे रहा है, क्यों परफॉर्मेंस मार्केटर को हायर करूँ? क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटर का जो एक्सपीरियंस रहता है इतने साल का, क्या करने से क्या फेल होता है और क्या करने से क्या स्केल होता है, या किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अभी मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो एक्सपीरियंस रहता है ना, उनको पता रहता है कि एक
सिस्टम बिल्ड होता है ना कि कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए। रीमार्केटिंग में मैं ऑफर्स डालूँ या टॉप ऑफ फनल में ऑफर्स डालूँ। अभी आपको लगता है एज अ हाफ स्टडी कि रीमार्केटिंग में डालते हैं कि इंडल्ज ऑडियंस, पर उसकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग रहती है ना, तो वो टॉप ऑफ फनल में डाल देता है समथिंग बजट। सो ये जो डिसीजंस मेकिंग है ना, ये एक्सपीरियंस से बिल्ड होते हैं। आप एक्सपीरियंस हो प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट में आप एक्सपीरियंस हो आपके बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में। यू कैन जस्ट डिमांड कि मुझे ये चाहिए ना। परफॉर्मेंस मार्केटर उसका जो जॉब है वो थिंक करके, भले वो एआई से करवा के दे रहा है, आपने एड्स बना दिया, लॉन्च कर दिया। अब डेटा स्टडी का क्या है, आप डेटा पढ़ भी लिए, यूट्यूब पे देख के आपने सीख के पढ़ भी लिया, ओके लिव इट, एआई है ना, एआई सजेशन दे ही देगा ना। देखो क्रिएटिव सही नहीं चल रहा, फनल में प्रॉब्लम है, ये है ना, एआई सब कुछ बोल देगा। इम्प्लीमेंटेशन facility again you have to learn. So if you are eager to learn and implement and you have to then go, it's a choice. मुझे ही करना है तो आप कर सकते हो, बट उसमें आपका टाइम जाएगा, समथिंग है। तो वो जो एक एक्सपीरियंस बंदा 1 घंटे में एज ए एक्सपीरियंस में सॉल्व कर सकता है, सोल्यूशन बता भी सकता है आपको, तो वो आपको 1 दिन के रिसर्च में के बाद मिलेगा। दैट्स द डिफरेंस इन दैट मैटर। अब मैं बताती हूँ ना आरटीओ का इशू, आपका आरटीओ आया, बताया भी दिया कि एक्सक्लूड करना है या समथिंग, और भी सारे ऑप्शंस दे दिया, आपने कर भी दिया स्टेप ऑन स्टेप। आगे क्या फेल हुआ तो चलने के बाद चल ही जाता है। बट बीइंग अ मीडिया बायर ना, आपको सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि नहीं चला तो क्या। इसका आंसर एक मीडिया बायर को, एज एक्सपीरियंस्ड मीडिया बायर को होना ही चाहिए। एज ए ब्रांड ओनर को ठीक है, उसने एक टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप करके लॉन्च कर दिया, वो आगे की जो स्केलिंग सस्टेनेबिलिटी रहती है ना, सीख के टाइम लगेगा। जो ऑलरेडी उसमें है वो जल्दी बना देगा, एक्सपर्टीज है तो उसको जल्दी आ जाएगा ना। आप में प्रोडक्ट को एक्सपर्टीज है तो आपको प्रोडक्ट जल्द है, तो जिसकी जो एक्सपर्टीज है उसमें टाइम बचा के वो जल्दी आप ग्रो अप कर सकते हो। आप बहुत शार्प हो तो इस योर चॉइस में कर सकते हो, इफ यू कॉन्फिडेंट देन गो अहेड। थैंक यू रुतुजा, मैं सारे अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहा। थैंक यू। थैंक यू।